Good morning students. Today we are going to start chapter 2 sports and nutrition. In this chapter we learn about balanced diet, nutrition, macro and micronutrients. Second topic is nutritive and non-nutritive components of diet and eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myth. Now first topic is balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet is that diet which consists of various constituents of food, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of an individual. Balanced diet हम वैसे डाइट को कहते हैं जो इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट के अनुसार फूड के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स वो एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी और क्वालिटी में होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द टेकिंग इन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस बाय विच ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी आर अकम्प्लिश्ड. It involves ingestion, digestion, absorption and assimilation. यानी कि यह न्यूट्रिशन क्या है? ओवरऑल प्रोसेस है जो कि फूड को इंजेस्ट और डाइजेस्ट किया जाता है. इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी के वेरियस सिस्टम्स के द्वारा अच्छे प्रकार से एब्जॉर्ब किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इन दिस टॉपिक we learn about macronutrients and micronutrients. The first question is, what is macronutrients? Nutrients that are required in large amount in the diet are known as macronutrients. They include carbohydrate, protein, fats. Next one is micronutrients. What is micronutrients? Nutrients that are required in very small amounts, minerals and vitamins. These two nutrients are micronutrients. Macronutrients, I already discussed about macronutrients required in large amount in the diet. Carbohydrate, protein, fats are included in macronutrients. Carbohydrate. What are carbohydrates? Carbohydrates are organic compounds which are the primary source of energy. They are known as energy giving food and are made of simple sugars that enters the body as glucose. Carbohydrate contain the elements of carbon, hydrogen and oxygen. Types of carbohydrates. There are two types of carbohydrate: simple carbohydrates and complex carbohydrates. Glucose, fructose, galactose, sucrose, maltose and lactose are called simple carbohydrates. These are crystalline. These carbohydrates are soluble in water. These are sweet in taste and are called sugar. तो simple carbohydrates ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है. ये क्रिस्टलिन होता है और साथ ही साथ टेस्ट में मीठा और वाटर सॉल्युबल होते हैं. Complex carbohydrate. Starch, dextrine, glycogen and cellulose are called complex carbohydrates. These are not crystalline. These are not sweet in taste. These are insoluble in water. तो इस प्रकार से सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स. प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर. Proteins are very large molecules, so they cannot be directly absorbed in our blood. Our digestive system turn it into amino acids for the usage. Protein are known as body building foods. Proteins form new tissues, repair and broken tissues, regulate balance of water and acid, transport oxygen and nutrients and make antibodies.
If proteins are not taken in appropriate amount of diet, then we may suffer from protein deficiency diseases like marasmus and kwashiorkor. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है, बहुत वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस कारण से डाइजेस्टिव सिस्टम एमिनो एसिड में उपयोग के लिए इसे टर्न कर देती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन के कमी से मरासमस और क्वाशियोर्कर डिजीज होते हैं। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फैट्स कीप अस वार्म and protects our organs. The body uses fat as a fuel source. Body uses fat as a fuel source. And fat is the major storage form of energy. Fat also has many other important functions in the body. Fat help in the production of hormones. Moderate amount of fat is good for health. Fat in food comes in several forms. जैसा कि हम देख रहे हैं several forms में जो है फैट भोजन में मिलते हैं। Water is made up of hydrogen and oxygen elements in the ratio 2:1. Water fluid replacement is most important nutritional concern for athlete. Loss of fluid results in less volume of blood circulating. As little as 2% body weight loss can decrease performance. वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करती है। यदि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, वाटर की कमी हो, तो उसके साइन है फटीग, हेडेक, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, डिजीनेस, मसल क्रैम्पिंग, पुअर स्लीप, रेसिंग हार्ट। तो ये थे स्टूडेंट हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है। मिनरल्स और विटामिन्स, ये दो न्यूट्रिएंट को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मिनरल्स क्या है? ए मिनरल इज ए केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो हमें जितने भी मिनरल्स के बारे में पढ़ना है उसमें हम सभी मिनरल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे को कहा जाता है माइक्रो मिनरल्स। कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, ये दीज आर कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। एंड आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट कॉल्ड माइक्रो मिनरल्स। कैल्शियम, it is important for strong bone and teeth. It helps in blood clotting. Potassium, it is needed for proper fluid balance, nerve transmission and muscle contraction. सोडियम क्यों जरूरी है? सोडियम helps transmission of nerve impulses. Magnesium maintain body cells. Phosphorus makes our gum healthy. Iodine, it helps in the production of hormone thyroxine in the thyroid gland. Lack of iodine causes goiter. आयोडीन की कमी से जो डिजीज होती है उसे गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट मिनरल है हमारा आयरन। आयरन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। क्रोमियम it stimulates insulin activity. Copper, it helps iron in the formation of hemoglobin. Cobalt, it protects us from anemia. Zinc, important for stronger immune system. मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जिंक आवश्यक होती है। और साथ ही साथ डायबिटीज़ कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड क्विकर रिकवरी फ्रॉम वुंड्स,
इसके लिए भी जिंक आवश्यक। नेक्स्ट माइक्रो मिनरल इज विटामिन्स। तो हमारा नेक्स्ट माइक्रो मिनरल्स विटामिन्स के बारे में जानना है। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन क्या होता है? विटामिन आर केमिकल विच आर वाइटल फॉर हेल्दी लाइफ। इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज, सो इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स को हम लोग चूँकि डिजीज से प्रोटेक्ट करता है इसलिए प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। एक्सेस यूज ऑफ विटामिन इज हार्मफुल। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक है जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट में घुलने वाले जो विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होते हैं साथ ही विटामिन सी ये वाटर में घुलने वाले होते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एल्मर मैककॉलम इन 1930। तो ये बेनिफिशियल क्यों है? बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर, स्किन इन्फेक्शन। हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखा था, तो उसके एक विटामिन से विटामिन B9 जो कि रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विटामिन B12 प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, किडनी एंड लिवर डिसऑर्डर। विटामिन सी हेल्प्स ट्रीट स्कर्वी, कैंसर एंड कॉमन कोल्ड। विटामिन डी एड्स इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस, टूथ डिके, डायबिटीज एंड रिकेट्स। विटामिन ई improves blood circulation and slow down aging process. विटामिन के reduces risk of menstrual pain and internal bleeding. तो ये इम्पॉर्टेंस है विटामिन के, और साथ ही साथ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ विटामिन। तो B1 और थायमिन। B1 जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 ग्रुप ऑफ विटामिन होते हैं इसमें। B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 होते हैं। विटामिन बी का दूसरा नाम थायमिन है। व्हीट, ग्राउंडनट्स, ग्रीन पीज, ऑरेंज, एग, ग्रीन वेजिटेबल, राइस, स्प्राउट्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ थायमिन। विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। सोर्सेज एग यॉक, फिश, पल्सेस, पीज, राइस, ईस्ट, व्हीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन B3 को हम लोग पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये ग्रोथ ऑफ बॉडी और डेफिशिएंसी के कारण ग्रे हेयर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके सोर्स है मिल्क, ड्राई फ्रूट, एग यॉक। विटामिन B5 और निकोटिनामाइड, इसके डेफिशिएंसी से प्लेग्रा डिजीज होती है और विटामिन B5 बॉडी वेट को मेंटेन करती है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B5 आर ईस्ट, मिल्क, पॉलिश्ड राइस एंड नट। विटामिन B6 vital for formation of hemoglobin, keeps skin healthy. Sources meat, fish, egg yolk, rice, wheat, peas. विटामिन B12, विटामिन B12 को कोबालामाइन भी कहा जाता है। रेड कलर की होती है, डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकती है। सोर्सेज एग यॉक, फिश, पल्सेस, पीज, राइस, ईस्ट, व्हीट एंड ग्रीन वेजिटेबल। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ईस्ट, स्पाइनेस और लीवर आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड्स। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाइट कलर की होती है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। और विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। इसके बेस्ट सोर्स है लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, टोमेटो, आंवला, ग्रीन चिली, स्पाइनेस, स्प्राउट्स, टर्निप। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप टू see you again. Next part of this chapter, sports and nutrition, will come soon in next video. Thank you. Till then, goodbye.